Hi guys, so we are starting lesson 16 of Modern India Tamil Nadu class 12, and this lesson is about the Indian national movement 1917 to 1947, and this will be part 1 of the video. And this chapter is very important, and that is why I have marked it as VVIP chapter, because this covers a very important timeline, basically the Gandhian era, in which all the important events of the national movement which finally leads to independence takes place. So it is very important that this timeline is very crystal clear to you. Okay, so this chapter is very important. Brace yourselves, we are going to start this. Okay, so let's start. So as I said that 1917 to 1947, this is the Gandhian era. So before we proceed, we need to know the man himself, and that is Mohandas Karamchand Gandhi. So Mohandas Karamchand Gandhi is known for his principles of non-violence and satyagrah. Basically, उनका फंडा ये था कि तुम्हें वायलेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आप वायलेंस करते हैं तो कल आप कभी उस जो सामने वाला इंसान है जब वो वायलेंस करेगा आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फंडा था उनका, इसीलिए वो जो भी करते थे वो करते सब कुछ थे नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, मतलब वो लॉज तोड़ेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन पीसफुली। तो यही उनका फंडा था। उनका फंडा था कि अगर आप सही हो और सही तरीके से काम करते हो तो आप पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। सिंपल। Okay, so he was born at Porbandar in Gujarat on 2 October 1869. तो 2 October हमें सबको पता है, we celebrate it as Gandhi Jayanti. Okay, so Mr. Gandhi, so Mohandas Karamchand Gandhi, he returned to India after studying law in England in 1891. So he went to England to study law and then he returned to India in 1891. And in April 1893, he went to South Africa. तो वो केस के लिए गए थे बेसिकली, बट देयर ही सॉ द स्ट्रगल अगेंस्ट एपाथाइड विच इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द blacks which was happening in South Africa at that point of time, and the situation of blacks was very you know pathetic. Basically they were not allowed to travel together, they were not allowed to have clean places to live. So it was a very pathetic situation. So Gandhi ji participated in that struggle against apartheid for 20 years, and finally in 1915 he came back to India. Okay, and after coming back to India he took a break for 1 year because he felt that I need to study the situation in India first, and he was already popular in India for his work in South Africa. So popularity was not an issue for him. He was also invited by national parties and all that, please come and cooperate and participate in the international movement. But he took 1 year gap, and after that he became active in Indian politics. So the first activity which Gandhiji had in India was in 1917, and that was Champaran Satyagrah. So in Champaran Satyagrah, he actually fought against the indigo planters who were actually forcing the European indigo planters who were actually forcing the peasants to grow indigo. And I think on 1/3 of the land, that was Teen Kathia system. So there he was requested by actually Rajkumar Shukla to intervene, and there Gandhiji practiced his first civil disobedience. Okay, so you should know that where Gandhiji introduced first civil disobedience or first hunger strike, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन. सो दीज थ्री इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये पहली जो इंटरेक्शन थी गांधी जी की वो थी. ठीक है, तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हुई थी चंपारण सत्याग्रह में in 1917. Okay, and in 1918 Kheda Satyagrah happened, in which again the Gandhiji had fought for peasants who were not able to pay taxes due to crop failure, and finally he was able to crack the deal with the authorities, and the taxes were basically maaf kar diya gaya tha. And for that he had he undertook first hunger strike. तो वो पहली भूख हड़ताल जो होती है, वो जो कि सबसे पावरफुल वेपन थी गांधी जी की, हर हमेशा आप देखोगे बाद में भी फास्ट एंड टू डेथ अभी अहमदाबाद मिल वर्कर्स में भी है. तो वो मतलब उनका फंडा था कि आप वैसे, और देखो अच्छाई से करते थे, तो इट वाज नॉट फाइटिंग विद एनीवन, ही वाज जस्ट वो खाना ही नहीं खाएंगे, आप नहीं सुनोगे उनकी बात. तो और उनका से इतना था, उनकी रिस्पेक्ट इतनी थी कि उनको अगर कुछ हो जाता है तो फिर अथॉरिटीज को भी पता था कि दे विल हैव टू फेस अ वेरी लाइक बहुत भयानक उसका रिएक्शन होगा. तो इसीलिए लोग उनकी बातें सुनते थे. तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक
गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह में इन 1918. एंड इन दिस मूवमेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट मैन वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो उसी समय से सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी. And again in 1918, Gandhi ji, did his first non-cooperation इन अहमदाबाद मिल वर्कर्स. सो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन किसके साथ उन्होंने किया था? ऑब्वियसली अथॉरिटीज के साथ. तो यहाँ पे भी मिल वर्कर्स रिवाइज्ड पे मांग रहे थे, जो ऑब्वियसली उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं देना चाह रहा था. तो फाइनली फर्स्ट नॉन कॉपरेशन करके, फास्ट एंड टू डेथ करके, लास्टली उनको मना कर फिर मिल वर्कर्स को जो डिमांड चाहिए थी वो दिया गया था. सो this was all about the first movements by Mr. Gandhi. And in 1917 you should know चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट. तो आप सिविल डिसोबीडियंस याद रखना है. पहला सिविल डिसोबीडियंस तो सिविल सी से शुरू होता है, चंपारण भी सी से शुरू होता है. तो आप ये याद रख लेना. आपको 3 याद रखने हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद. ठीक है. तो ये सबसे पहले हुआ था 1917 में, ये 1918 में, ये भी 1918 में. ठीक है. तो अभी आपको सिविल तो आप सी और सी, चंपारण और सिविल कर लोगे. ठीक है. फिर खेड़ा सत्याग्रह में आप देखना, ये याद रखना कि अहमदाबाद मिल वर्कर्स में नॉन कोऑपरेशन हुआ था. ठीक है. तो उससे आपको थोड़ा याद रह जाएगा कि फिर खेड़ा में हंगर स्ट्राइक वाज द रोल. तो ओके, लेट्स प्रोसीड. ओके, सो नाउ इन 1917 एक अलग गेम भी चल रही थी साइड से. वो ये थी कि एक कमिटी बनाई गई अंडर सर सिडनी रॉलेट टू लुक इनटू द मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज. तो तभी बहुत ज्यादा मिलिटेंसी की ग्रोथ हुई थी और बहुत ज्यादा मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रहे थे. तो एक कमिटी बनाई गई थी सर सिडनी रॉलेट के अंदर, और उस उनके रिकमेंडेशंस पे मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुई बाय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन विच द टर्म्स वेयर दैट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन. मतलब बस शक की बुनियाद पर, सिर्फ आप अगर अथॉरिटीज को शक हो जाए कि ये बंदा कुछ गलत करने वाला है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते थे. और सबसे और जो खराब चीज थी वो ये भी कि नो अपील और पिटीशन कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच अरेस्ट. तो एक तो आपको शक के बेसिस पे कोई अरेस्ट कर सकता है, उसके बाद आप कोई भी अपील या पिटीशन भी फाइल नहीं कर सकते. बेसिकली मतलब आपको उठा लेंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके बाद. सो इट वॉज वेरी ब्रूटल एंड इट बहुत वाइड प्रोटेस्ट हुए थे उसके खिलाफ. उसको ब्लैक एक्ट बोला गया था. एंड ऑन 6 अप्रैल 1919 ऑल इंडिया हड़ताल हुई थी. तो उसके बाद क्योंकि इतना रिवोल्ट वगैरह हो रहा था, तो उसके बाद महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड एंड was kept in Delhi. And पंजाब से डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, they were also arrested in अमृतसर. और पंजाब एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव था रॉलेट सत्याग्रह में. तो जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब बहुत एक्टिव था रॉलेट सत्याग्रह में, तो इसी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जनरल डायर को अपॉइंट किया था टू लुक इनटू द सिचुएशन, कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है, तो यू नाउ लुक इनटू द एक्टिविटीज. तो जनरल डायर हैड लाइक मतलब उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था कि कोई मीटिंग्स नहीं हो सकती, कोई किसी से मिल नहीं सकता, काइंड ऑफ. ठीक है. तो उसके बाद बैसाखी डे थी, हार्वेस्ट फेस्टिवल 13 अप्रैल को 1919 में. ठीक है. तो उस दिन बहुत सारा क्राउड फेस्टिवल मनाने के लिए भी इकट्ठा हुआ था, और एक छोटी पब्लिक मीटिंग भी इन लोगों ने रखी थी जो लीडर्स थे. ठीक है. लेकिन जो मोस्ट भीड़ थी नॉर्मली कही जाती है वो फेस्टिवल के लिए ही थी. सो दैट वाज जनरल क्राउड. तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कोई ऑर्डर निकला हुआ है कि आप मीटिंग्स नहीं कर सकते पॉलिटिकल एंड ऑल दैट. तो उसके बाद वहां पे जनरल डायर आए और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चीज के फायरिंग करवा दी. ये तो सबको आई थिंक बहुत पॉपुलर इवेंट है, सबको पता है. तो फायरिंग करवा दी थी बिल्कुल इनोसेंट लोगों पे. 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, भयानक वाली. एंड आफ्टर दैट लाइक बहुत ज्यादा मतलब 379 पीपल वर किल्ड एंड 1137 वुंडेड. मतलब और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, तो आप सोच लो कि कितना ज्यादा हुआ होगा इससे. ठीक है. ऑब्वियसली करेक्ट फैक्ट्स तो नहीं दिए होंगे. तो उसके बाद इनके ऊपर वैसे मतलब एक्शन लेने की बात भी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ खास एक्शन हुआ भी नहीं था. अ, मतलब हाँ, ऑब्वियसली उनको हटा दिया गया था, बट ओके, बाद में हम लोग स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे. इसकी कहानी बहुत अच्छी है. मतलब इनके खिलाफ केस चल रहा है, उनको हटा भी रहे हैं, और बाकी फिर एक न्यूज़पेपर था, उन्होंने इनके लिए पैसे कलेक्ट किए थे. सो इट वाज लाइक वेरी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना. तो कुछ इनके सपोर्ट में भी थे, विच वॉज वेरी वियर्ड. मतलब क्योंकि इट वॉज रियली वेरी ब्रूटल इवेंट. तो
मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इतनी ब्रूटल इवेंट थी ये। एंड आफ्टर दिस इवेंट रविन्द्रनाथ टैगोर हैड रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। ये बहुत पॉपुलर मतलब इवेंट है, ये आप याद रखिएगा कि कौन से इवेंट के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ये नाइटहुड रिनाउंस की थी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि जालियांवाला बाग मसाकर के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को रिनाउंस किया था। ठीक है, ये आई थिंक बीपीएससी में पूछा है लास्ट ईयर, सो यू शुड नो दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का जो चीफ कॉज था, इट वाज डिफीट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गई। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सिवरस 1920। तो ये मुस्लिम्स को बड़ा इंसल्ट के तौर पे लगा था। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी में जो टर्किश की जो सोवरेनिटी थी, मतलब जो सुपीरियर उनका पावर था, उसको बिल्कुल छीन लिया गया था, मतलब अबॉलिश कर दिया गया था। इट अबॉलिश्ड द टर्किश sovereignty. And Muslims believed that the Caliph, the Sultan of Turkey, he was a religious head of Muslims all over the world. तो उनको वो पर्सनल लग गया था कि अगर उनके सोवरेनिटी को अगर ये लोग अबॉलिश कर रहे हैं, मतलब पूरे मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है उनके लिए इंसल्ट की बात है। ओके, सो देर वॉज द that is why they started the Khilafat movement. And in this, prominent leaders were Maulana Abul Kalam Azad, M.A. Ansari, Saifuddin Kichliyo, and Ali brothers. So Ali brothers में कौन कौन थे? शौकत अली and मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, and on like 19th October 1919 खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद खिलाफत डे भी ऑब्जर्व किया था। और 23 नवंबर 1919 को एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें हिंदूज मुस्लिम्स सबको मिलके गए थे। इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गांधी जी। ठीक है, एंड गांधी जी फाउंड अ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि उनको समझ में आया कि अगर इस समय हम लोग इनको अपने साथ मिला लें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो लोग बहुत दुखी हैं। एंड इफ वी सपोर्ट देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट विल प्रूव कि होता है ना, वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स और हिंदूज आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। एक अच्छा पॉइंट है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया गया विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, so non-cooperation movement, it happened in the period of 1920 to 22। तो 1920 में एक स्पेशल सेशन हुई थी कांग्रेस की कैलकाटा में। ओके, प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय। इन दिस एक्चुअली महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। तो देखिएगा, अब जब भी हम लोग बात करते हैं स्पेशल सेशन की, तो उसमें क्या था कि नॉर्मली हर कांग्रेस का एनुअल सेशन का टाइम होता था दिसंबर में हर साल। ठीक है, लेकिन इन लोगों को जब कोई अर्जेंट रेजोल्यूशन पास करनी होती थी कि मान लो अभी कोई मूवमेंट शुरू करना है, तब ये लोग एक स्पेशल सेशन रखते थे। मतलब होता है ना कि कोई चीज है, कुछ मूवमेंट है, कुछ होता है ना, सत्याग्रह है, एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो इमीडिएटली शुरू करनी है, तो उसके लिए लोग एक स्पेशल सेशन रखते थे, फिर उसमें रेजोल्यूशंस पास करते थे। तो 1920 में भी स्पेशल सेशन रखा गया कैलकाटा में अंडर द chairmanship of Lala Lajpat Rai, in which Mahatma Gandhi had moved the non-cooperation resolution। और फिर 1920 का जो एनुअल सेशन हुआ था नागपुर में, उसमें प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। और इसमें भी नॉन कोऑपरेशन को ऑब्वियसली इंडोर्स किया गया। और पहली बार ये बोला गया दैट नाउ द एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट बट स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। ठीक है, एंड ऑल्सो they promised that now they will work on reconstitution of working committees of Congress on linguistic basis। तो ये बेसिकली वर्किंग कमिटीज जो कांग्रेस के ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने की बात हुई, इसीलिए ताकि लोकल लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़े। होता है ना, आप लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है। यहाँ पे होता था कि बाकी बस एलीट लोग ही पार्टिसिपेट करें जो इंग्लिश जानते हैं या एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन लोकल लोग नहीं कनेक्ट कर पाते ना, क्योंकि उनको उतनी लैंग्वेजेस नहीं आती, उनको बस अपनी लोकल लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये लोग इसीलिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे कमिटीज बनाने लगे ताकि लोकल लोग भी एसोसिएट कर पाए, और फिर मूवमेंट को होता है ना वो ब्रॉडर arena मिले, people could participate at a broader scale in that। So that is why they had worked on now we will constitute working committees on linguistic basis, so that more and more local people can connect to it and participate in the movement। Okay, but after this declaration, Muhammad Ali Jinnah, Annie Besant, G.S. Kharpade, and B.C. Pal, they left the Congress because they believed that no, we will go through constitutional and lawful struggle. हमें नहीं चाहिए ये स्वराज वराज। ठीक है, तो उनको था कि हम ब्रिटिश के अंदर रह के ही अपने राइट्स लेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल। तो इन्होंने इसीलिए कांग्रेस छोड़ दिया था।
So after non-cooperation was announced, what were the main things which they did? So first of all 1919 एक्ट के अंदर जो भी इलेक्शंस होने वाले थे उसको बॉयकॉट किया गया. फिर यहाँ पे भी देखिए एक सरेंडरिंग की बात हुई है. हमने एक देखा था अभी कि जालियांवाला बाग मसाकर के बाद Rabindranath Tagore renounced his knighthood. Now here also, when non-cooperation movement was announced, so see, non-cooperation movement was announced in the backdrop of many things. First of all, Rowlatt Act 1919, then Jallianwala Bagh massacre. That was like super like brutal event. So that had like shocked the entire country कि ये कैसे कर सकते हैं types. तो जालियांवाला बाग मसाकर था, रॉलेट एक्ट था, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट. तो ये तीनों जो रीजंस थे, इनके साथ उठी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इसीलिए वो इमोशंस को आप समझना बेसिकली. तो उसके बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हुई तो महात्मा गांधी ऑल्सो रिनाउंस्ड हिज ऑनररी टाइटल्स जो उनको ब्रिटिश ने दिए थे. ठीक है. एंड नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया और इसी के लिए बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया. So these were set up, okay. And in 1921, mass demonstration against Prince of Wales also was organized during his tour of India. मतलब बहुत clear public protest था कि people were definitely on a mode to protest. तो that is why जब Prince of Wales आए थे इंडिया में तो पूरा मास डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, लोग एकदम रोड पर उतर के प्रोटेस्ट किए थे. It was kind of showing that we do not respect you at all. So and on 5th Feb 1922 एक्चुअली इसके बाद प्लान ऐसा था कि अभी अब सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट शुरू होगा. इट वुड मूव टू बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस. लेकिन 5th Feb 1922 को चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हो गई थी गोरखपुर में इन उत्तर प्रदेश. सो यूनाइटेड प्रोविंसेस. तो क्या हुआ था कि वहां पे एक एंग्री मॉब थी, भीड़ थी बिल्कुल, एंड दे बर्न्ड अ पुलिस स्टेशन. ओके. एंड इन दैट 22 policemen they were burned to death. So Gandhi ji was very disappointed, and that is why on 11th Feb 1922 non-cooperation movement was called off. And बेचारे ने कॉल ऑफ भी किया 11th फेब को, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने 10th मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था. ओके. सो इस डिसीजन से काफी नाखुश हुए थे nationalist leaders because they were feeling that now the public is super ready to participate in the movement, and at the supreme level of energy Gandhi ji just called off the movement. So the nationalist leaders were very disappointed by the decision. But Gandhi ji felt that if he will continue the movement, then people will think that violence is a way to get freedom, which he was not promoting, because he felt that, as I said he was not in support of violence, he was in support of non-violence. So he felt that people have not understood the meaning of the struggle he's talking about, satyagrah, non-violence. People have not understood it, and that is why Chaudi Chauda incident happened. And that is why he felt that until and unless people understand the value of non-violence and satyagrah, he cannot continue the movement to next level. सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल मास मूवमेंट थी, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ, सारे लेवल से, पेजेंट्स वगैरह, किसान, वो सब कोई. ठीक है. देन स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू द रिमोट कॉर्नर्स. सो ऑब्वियसली सी इट वाज अ रियल मास मूवमेंट बिकॉज इट स्प्रेड टू द रिमोट कॉर्नर्स. ये बहुत दूर दूर तक ये चीज फैली, वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तभी लोग पार्टिसिपेट भी करना शुरू किए. एंड इट वाज द ऑब्वियसली द हाइट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, which was actually seen by Gandhi ji as an huge opportunity for Hindu Muslim unity. और ये यूनिक है, मतलब इस आपको मूवमेंट में बाकी जगह पे ऐसा और कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा देखने को. And willingness and ability of the masses to endure hardships and make sacrifices. So basically, see, this movement kind of showed the capacity that masses have, that public had, and the willingness, the ability, the will to fight for their freedom, will to fight, make sacrifices, to undergo the डिफिकल्ट सिचुएशन. तो ये चीज बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज पब्लिक को आप ऐसे मैन बोल कर नहीं करवा सकते, क्योंकि जनरल जनता का बस होता है कि मुझे खाना पीना मिले, मैं अपने रोटी कपड़ा मकान में, वो बेचारा बिजी रहता है. तो
involving masses in the national movement is a big deal, and which they were able to crack in the non-cooperation movement. So that is why when we talk about that it was a real mass movement, and the movement showed the willingness and ability of the masses to go for hardships and make sacrifices, it was really a big deal, because mass participation is really difficult. Okay, so that was like one major thing which was achieved through non-cooperation movement. So in 1922, again we see that there is a small split within Congress in Gaya session of Congress in December 1922, and which president was चितरंजन दास, because क्या हो गया था कि उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस चाहता था कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करे, और जो अपना उन लोगों का प्रोडक्टिव वो लोग काम कर रहे थे, मतलब सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, वो करते रहेंगे। लेकिन एक सेक्शन था जो चाहता था कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और हम लेजिस्लेचर का पार्ट बनकर गवर्नमेंट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो सेक्शन थी जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके लेजिस्लेचर का पार्ट बनकर गवर्नमेंट को तोड़ना चाहती थी, वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसीलिए एक स्प्लिट हुआ, लेकिन इस बार वैसा स्प्लिट नहीं हुआ सूरत स्प्लिट टाइप का, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि ऐसे एकदम से अलग हो जाने से मूवमेंट पर असर पड़ जाता है, ब्रिटिशर्स फायदा उठाते हैं। तो इस बार इनका ऐसा था कि वी आर पार्ट ऑफ कांग्रेस, लेकिन हम अपनी अलाइनमेंट चेंज करेंगे, आप अपना करो हम अपना करते हैं। तो इन्होंने पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, ऑन 1 जनवरी 1923, विच वॉज अ सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के पार्ट हैं, हम हैं, लेकिन हमारी पार्टी अभी अलग है। ठीक है, और इसमें मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वे एक्चुअली द लीडर्स। ठीक है, सो दैट इज दे वर कॉल्ड द स्वराजेस। सो दैट इज व्हाट आई सेड, दे वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, so in November 1923 elections, they actually won like a great deal, like 42 out of 141 elected seats and clear majority in the provincial assembly of central provinces. तो अच्छी खासी जीत हुई थी उनकी, अच्छा खासा पब्लिक सपोर्ट था, which was shown in November 1923 elections. And see, these people were actually very good in whatever they were doing, like वो legislature का part थे, तो कोई भी repressive law अगर pass हो रही है तो उसके खिलाफ they were passing resolutions, and they had also demanded responsible government, with changes in the Government of India Act of 1919, which was last passed. And मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास में ऐसा था कि जो सेंट्रल में था वो हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और चितरंजन दास बंगाल वाली पार्टी को हेड करते थे। तो एक और एग्जाम्पल है कि कैसे ये लोग एक्टिव थे इन द लेजिस्लेचर, उसमें था कि एक होम मेंबर थे अलेक्जेंडर मुडिमैन। सो व्हेन ही वाज ट्राइंग टू पास लाइक और कंसिडर द सिस्टम ऑफ डायरकी एज प्रॉपर, कि डायरकी होनी चाहिए, तभी दे हैड पास्ड, द पार्टी हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट इट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अच्छी खासी देखो 42 आउट ऑफ 141 सीट्स जीते थे इन्होंने, तो इट वाज लाइक गुड। तो इनकी वॉइस थी थोड़ी, वो ये लोग यूटिलाइज करते थे अच्छे से। एंड जून 1925 में चितरंजन दास सर पास्ड अवे, एंड आफ्टर दैट स्वराज पार्टी स्टार्टेड वीकनिंग, क्योंकि मेन तो दो ही लोग थे ना, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, तो चितरंजन दास सर पास हो गए, तो इसीलिए स्वराज पार्टी उसके बाद वीक हो गई थी। And then comes Simon Commission 1927. So we have already studied about this in Lakshmikant chapter 1. तो थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में एक प्रोविजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का जो वर्किंग है उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाया जाए आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही कमीशन बना दिया था, 1927 में ये कमेटी बना दी थी साइमन कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन हो गया था। और इसमें सारे मेंबर्स जो 7 मेंबर्स थे, दो ऑल वेर इंग्लिश, एंड दैट इज व्हाई ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस डिसाइडेड टू अपोज दिस। और इसके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट हुए थे कि जब 3 Feb 1928 को कमीशन फाइनली बॉम्बे आई थी, तो देर वॉज अ ह्यूज हड़ताल, एंड ब्लैक फ्लैग्स वेर शोन इन विच इट वॉज रिटन साइमन गो बैक। Okay, I should have shown one picture here, but sorry for that. Okay, तो साइमन गो बैक का फ्लैग लेके दिखाया जा रहा था कि मतलब पीपल वेर सो एंग्री, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इट वाज ऑलवेज अबाउट कि द होल आइडिया ऑफ एक्ट एंड रिव्यूइंग इट वाज टू लुक बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। और अगर इंडियन ही नहीं है कोई, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है इंडिया को, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा।
ठीक है, आपको कोई तो रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा ना। आपने सातों मेंबर इंग्लिश रखे हैं, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं इंडिया का फ्यूचर? तो ये मेन रीजन था लोगों के प्रोटेस्ट का। ठीक है, कि आप वहां पे रिप्रेजेंटेटिव कैसे नहीं रख रहे हो हमारे एंड से। एंड 30 अक्टूबर 1928 को बहुत ही मतलब दुख बड़ी इवेंट हुई थी। उसमें लाला लाजपत राय, ही वाज इंजर्ड इन एन एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन विद स्टूडेंट्स एट लाहौर। वो एक स्टूडेंट्स के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे लाहौर में, और उसमें लाठी चार्ज में उनको बहुत ज़्यादा ग्रेव इंजरीज हो गई थी। एंड दैट इज़ वाई ही पास्ड अवे आफ्टर 1 मंथ। तो उसका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था लोगों में, क्योंकि ही वॉज लाइक अ नेशनल लीडर। तो बड़े लीडर थे, बड़े स्टैचर के, उनकी डेथ ऐसे हो जानी, तो इसलिए काफी पीपल में बहुत, लोगों में बहुत गुस्सा था उस चीज का। वो भी दिखा था फिर प्रोटेस्ट में बाद में। But after all this, in May 1930, the report was published, जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशंस थी। तो उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस में मेन थी वाज दैट एबॉलिशन ऑफ डायरकी। दे फेल्ट दैट द डायरकी फंडा was anyways unsuccessful, and they recommended representative government in the provinces, basically provincial autonomy that was recommended. And that is why you will see that in 1935 act that was provided। लेकिन इनको डायरकीज इतने प्यार था कि इन्होंने प्रोविंसेस से डायरकी हटा दी थी, लेकिन फिर भी सेंटर में डायरकी लेकर आए थे। वो भी कभी ऑपरेशन में नहीं आया, तो बस ये लोग डायरकी ला ही रहे थे, कहीं चल तो कुछ रहा नहीं था। तो जो भी है, तो साइमन कमीशन ने डायरकी प्रोविंसेस से हटाने के लिए बोली थी, तो वो चीज मानी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाली बात भी मानी गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई उनको, पावर्स दिए गए प्रोविंसेस को कि सेंटर की इंटरफेरेंस कम हो जाए। लेकिन डायरकी नहीं छोड़ी थी इन्होंने, डायरकी फिर भी लाई गई थी एट सेंटर। ओके, सो वट एवर इट इज, द कमीशन का जो रिपोर्ट था साइमन कमीशन का, वही बेसिस बना था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो एज वी आर ऑलरेडी अगेन डिस्कस्ड इन लक्ष्मीकांत चैप्टर 1, सो वहां पे मैंने आपको कहा था कि साइमन कमीशन बनाने के पीछे लॉर्ड बर्कनहेड का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड एक्चुअली हैड चैलेंज्ड इंडियंस दैट just show me if you can make a constitution for yourself types, and that challenge was accepted by International Congress, and they convened an all party meeting on 28th of Feb 1928, and it was a committee of 8 which was headed by Motilal Nehru, और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट निकाली थी इन 1928। और उसमें इन्होंने कुछ मेजर पॉइंट्स दिए थे, दैट दिस इज समथिंग विच वी आर डिमांडिंग। सो फर्स्ट वाज डोमेनियन स्टेटस एज द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप। ओके, तो मोतीलाल नेहरू का जो ये कमेटी था, जो इसको हेड मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने कहा था डोमेनियन स्टेटस। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिमांड थी, क्योंकि एक जो यंगर सेक्शन थी कांग्रेस की, वो इससे एग्री नहीं करती थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू के बेटे खुद आते थे, जवाहरलाल नेहरू। और वो लोग इस चीज से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो पीछे जाना हो गया, मतलब डोमिनियन में क्यों चाहिए अब हमें। अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं मूवमेंट में कि हम पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। तो डोमिनियन तो फिर वो हो जाता है ना कि वो पार्ट रह ही जाएगा ब्रिटिश का। फिर भी मोतीलाल नेहरू वेंट फॉर मोर पीसफुल अप्रोच, की होता है ना, जो सबसे आसानी से मिल सकता है वो उसको डिमांड करते हैं, तो वो मिल भी जाएगा टाइप्स। तो फर्स्ट उन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस हमें इमीडिएटली दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, मतलब उन्होंने नहीं, पूरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस निकाली थी नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें बोली गई थी, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, जो कि मानी भी गई, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो ये भी थोड़ी बहुत मानी गई, क्योंकि जैसे अभी हमारा है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो वो लाया गया था वहां पे भी, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी थोड़ी थोड़ी मानी गई थी। एंड बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, तो ये भी मानी गई थी। बट डोमेनियन स्टेटस ऐसे इमीडिएटली नहीं मिला था तभी। और मोहम्मद अली जिन्ना हैड एक्चुअली प्रपोज्ड सम अमेंडमेंट्स इन नेहरू रिपोर्ट, और मतलब मुस्लिम्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन एंड ऑल दैट। फिर उनको आई थिंक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो डिमांड नहीं कर रहे थे। फिर ऐसे ही था, मतलब उनको कुछ कुछ अलग चीजें चाहिए थी जो कि नहीं सुनी गई। तो इसलिए उनको लगा कि जो नेहरू रिपोर्ट के डिमांड्स हैं वो मुस्लिम्स इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो जो मुस्लिम लीग का सेक्शन था उधर चले गए थे,
और एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द मुस्लिम्स में उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स निकाले थे कि होता है ना हमें भी ये चीज चाहिए। तो उसके बारे में हम डिटेल में स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। फिर फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई 1930 से 34 के बीच में हुई थी ये मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई थी लाहौर में दिसंबर 1929, जो नेशनल एनुअल सेशन होती थी ना उसमें। तो दिसंबर 1929 में एक एनुअल सेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर में, जिसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट, तो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का तो वैसे भी ब्रिटिशर्स ने उतना सुना नहीं ना, तो उसके बाद इनको पॉइंट मिल गया कि देखो वैसे भी नहीं सुन रहे आपकी, तो अब हमें क्यों चाहिए डोमिनियन, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। तो इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने बोल्ड में बड़े बड़े करके लिखे हैं। आप याद रखना कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ था, लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसी सेशन में इट वाज गिवन अ कॉल टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि अब हम सेकेंड राउंड ऑफ मूवमेंट शुरू करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जिसकी वजह से स्वराजिस्ट जो है वो फाइनली वॉकआउट कर गए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं भैया, पूर्ण स्वराज वाला फंडे के तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो स्वराजिस्ट जो है वो निकल गए थे। ठीक है, क्योंकि उनको वही वो ब्रिटिश के अंदर के पार्ट रह के ही रिफॉर्म करना चाहते थे। और पूर्ण स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स को बाहर निकालो। तो वो वाले चीज से ये लोग अग्री नहीं करते थे, तो स्वराजिस्ट जो है निकल गए थे कांग्रेस से। और जनवरी 26 1930 को डे ऑफ इंडिपेंडेंस करके सेलिब्रेट किया गया था। और इसी वजह से जनवरी 26 को ही देखिएगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था, एंड इट इज रिपब्लिक डे, इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गॉट इन्फोर्स्ड ऑन जनवरी 26 1950। ठीक है, तो ये जनवरी 26 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1929 में आपका पूर्ण स्वराज पास हुआ था रेजोल्यूशन, और ये दिसंबर में पास हुआ था, तो इसीलिए ये लोगों ने जनवरी 26 चुना था कि ये हमारा डे ऑफ इंडिपेंडेंस है, अब तो हम इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे टाइप्स। तो इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो फाइनली ये जो सिविल डिसोबीडियंस है ये शुरू हुई थी दांडी मार्च से। सो ऑन 12th मार्च 1930 गांधी जी began मार्च टू दांडी विथ हिज 79 फॉलोअर्स, एंड 5th अप्रैल 1930 को वो बिल्कुल चलकर दांडी पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने फाइनली जो होता है ना फॉर्मली लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस को बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। तो अब ये देख रहे हो वो कितने प्यार से मतलब मूवमेंट करते थे। अब उन्होंने देखो उनका सॉल्ट लॉ, वही वो मैं बोल रही हूँ, वो लॉस तोड़ेंगे लेकिन वायलेंस में नहीं जाएंगे। तो सॉल्ट लॉ तोड़ा था क्यों, क्योंकि वो मानते थे कि सॉल्ट पर टैक्स लगाना बिल्कुल गुनाह है, क्योंकि सॉल्ट बेसिक नीड है हर इंसान की, कॉमन मैन की। तो इसीलिए आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते वैसे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसीलिए शुरू ही हुई थी बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। और फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पूरा प्रोग्राम था उसको आउटलाइन किया था ऑन 9 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने, जिसमें क्या बातें बोली गई वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट की मेकिंग ऑफ सॉल्ट इन एवरी विलेज, तो हर गांव में अब सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मतलब वो सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। और पिकेटिंग बाय विमेन बिफोर द शॉप सेलिंग लीकर ओपियम एंड फॉरेन क्लोथ्स, मतलब जो भी ये फॉरेन के सामान जो बिकते थे बहुत ज्यादा, लीकर ओपियम फॉरेन क्लोथ्स, इन सब के जो भी शॉप्स इनको बेचते हैं उनके सामने विमेन जो है वो पिकेटिंग करेंगे। फिर इन फॉरेन क्लॉथ्स का बॉनफायर होगा, मतलब जला देंगे बिल्कुल। फिर खुद से हम लोग बनाएंगे कपड़े बाय यूजिंग चरखा, और इससे वी विल ऑल्सो बी फाइटिंग अनटचेबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी इशू थी उस टाइम पे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम चरखा को बहुत प्रमोट करते थे गांधी जी, उससे उनका था कि वही कि एक तो हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, होता है ना, और उनका था कि उससे वो अनटचेबिलिटी भी फाइट करते हो, क्योंकि वहां पे आप ये नहीं देखते कि किसने चरखा चला के कपड़ा बनाया है ना। तो अनटचेबिलिटी भी हम फाइट करेंगे। फिर स्कूल्स कॉलेजेस को बॉयकॉट करना है, गवर्नमेंट जॉब्स को रिजाइन किया गया, टैक्सेस पे नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात थी सिविल डिसोबीडियंस में, कि people will not be paying taxes. So this was all outlined in the program. Okay. So this is where we end the part one of the video, and in the next part we will start with round table conference. ठीक है, तो I hope you enjoyed the video, and बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, we will cover
आराम से, कोई चाप की बात नहीं है, ठीक है. Just stay in the journey, and everything rest will be taken care of. Okay, so thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.